square plus b square is there. 1 minute. Okay, now it is correct one. Mod z is equal to under root of a square plus b square. It is called as a modulus of complex number is there. Then afterward, next thing that you see in case of here is the modulus के बाद अपन देखें argument है ना, argument of complex number is nothing but argument of complex number. Argument is also called as the amplitude of complex number है ना. शॉर्ट में बता रहा सब अच्छे से देखिए अपन लेकर. What is the argument or amplitude? If there is a complex number z is equal to a plus ib, then we have to find out the angle tan theta. Tan theta is nothing but it is nothing but b by a. So we are interested to find out theta is equal to tan inverse of b by a. It is called as the argument or amplitude of complex number. Okay, so that is the way. Now we proceed to the next part is that different position of amplitude in different quadrants. एम्पलीट्यूड हर क्वाड्रेंट में अलग अलग मिलेगा अपने को है ना. तो ये अपना लास्ट बीट यहां तक अपन लिए थे, इससे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे. सी है ना व्हाट इज द लास्ट बीट हियर. आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर, ब्लर इज देयर. व्हाई इज ब्लर? सी है ना. ओके, सो इन दैट थीटा इज इक्वल टू tan inverse of b by. So we have to see different position of or different what is the next thing, the argument of z in different quadrants. Last bit अपन यहाँ तक आ गए थे. Argument of z in different quadrants is there. In different quadrants. तो इसमें सबसे पहले पोजीशन ये थी different quadrants में. First position is that it is nothing but here now. 1 minute. You have to wait only 1 minute here. Okay, this one argument of z in different quadrants in which you have to see what is the position of in the first quadrant of that one. पहले quadrant में क्या position है पहले वो देखेंगे अपन. In the first quadrant केस 1 अगर से अपन इसका केसेस वाइज देखेंगे तो पहली केस में समझो if x greater than 0 comma y greater than 0 दोनों पॉजिटिव है. इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे? इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ दैट वन. if x greater than 0 y greater than 0 then our point means complex number p of xy lies in first quadrant. Lies in first quadrant of that one. It lies in first quadrant. तो इसके हिसाब से कैसा होगा? ये पोजीशन रहेगी. This one there is a point p. Coordinates of point P something like to be x comma y, which lies in the first quadrant of that one. Now then afterward, as we know that it is the origin, the distance of point from the origin is nothing but mod z modulus it making certain angle theta. तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट है थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक लेंगे अपन? In that case ये important है. If point P of xy lies in the first quadrant, then in that one argument की पोजीशन कहां से कहां तक रहेंगी? 0 से लेके 90 तक. So you can say that here our theta means our argument lies between 0 to 90 से. ये important है. मतलब कैसा? जैसे कि for example z is equal to 2 plus 3i ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, रियल भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी भी पॉजिटिव है. तो यहाँ पे अगर से किसी ने पूछा इसका आर्गुमेंट क्या रहेगा, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, तो अपन बिंदास बोल सकते हैं इसका आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड 0 से लेके 90 के बीच में कुछ भी आ सकता है. अपन जो निकालेंगे वो लाइक दैट. इट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन. दैट इज इक्वल टू 2 plus 3i इज समथिंग लाइक टू दिस वन. ओके, तो ये हो गया पहला क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट की पोजीशन. एंगल थीटा निकालेंगे तो उसकी रेंज कितनी है? 0 से 90 के बीच में वो एंगल कितना भी आ सकता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 के बीच में. ओके, नाउ if you proceed to the second quadrant of that one, इसके अगर से अपन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पोजीशन रहेगी? देखिए केस 2 में, केस 2 में क्या पोजीशन रहेगी? एंगल निकालेगा तो इसमें क्या रहेगा? if what is the next condition here? if case 2 if x less than 0 और y greater than 0, ये सबको मालूम है ना, दो
दोनों इसमें प्लस प्लस, यहाँ पे क्या रहता माइनस प्लस मतलब x नेगेटिव और y पॉजिटिव आया, तो उस टाइम पे पॉइंट कहाँ पे रहेगा, पॉइंट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर p of xy lies in which quadrant, it lies in second quadrant, ये कहाँ पे रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इसके वास्ते एंगल थीटा की लिमिट कितनी रहेगी, देखो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट कहाँ पे, अब सेकंड क्वाड्रेंट में, दिस वन, दिस इज आवर पॉइंट P, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। तो इसके लिए जो एंगल निकालेंगे वो एंगल की लिमिट, मतलब एंगल मतलब क्या, आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट कितना रहेगा थीटा, इसकी रेंज कहां से रहेगी, 90 से लेके 180 के बीच में। तो यहाँ पे जो थीटा है ये इंपॉर्टेंट है, आवर थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 180, पाई बाय 2 मतलब 90 और पाई मतलब कितना 180। तो अगर से पॉइंट P मतलब अपना कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उस टाइम पे उसका जो एंगल रहेगा वो एंगल की रेंज कितनी रहेगी, 90 से 180 के बीच में, इट इज द रेंज ऑफ दैट वन, ओके। नाउ मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा कैसा समझेंगे अपन, ये ऐसा आ गया समझो, -2 + 3i, तो रियल पार्ट माइनस है और इमेजिनरी पार्ट प्लस है, मतलब वन पार्ट इज माइनस एंड अनदर पार्ट इज अ प्लस, सो इट मींस दैट x is negative and y is positive, so this point P is lies in the second quadrant, and if you are interested to find out the argument or amplitude, so that it is nothing but it lies between 90 to 180, ये इंपॉर्टेंट है। पहले क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितना रहेगा, लिमिट क्या है उसकी, 0 से 90 के बीच में कुछ भी रह सकता। दूसरे अगर से कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे क्वाड्रेंट में है तो एंगल कितना आएगा, 90 से लेके पाई के बीच में कुछ भी एंगल दोबारा इसमें आ सकता, ओके। देन आफ्टरवर्ड नेक्स्ट थिंग इज दैट, ओके अब नहीं होगा ब्लर, थोड़ा ब्लर हो रहा था बीच में, 1 मिनट आई हैव टू चेक इट, व्हाट हैपेंस हियर, some students getting problem here, they are getting blur here, so see here now what is the actual problem here. Okay, now see here now, अब नहीं होगा ब्लर, ओके ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा तुम्हारे साउंड में अभी। तो यहाँ पे ये आ गया -2 + 3i, मतलब रियल पार्ट इज नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, इट मींस आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। If it lies in second quadrant, then we can say that our angle theta is lies between 90 to pi is there. उसके बाद तीसरी पोजीशन में अगर से देखेंगे अपन थर्ड पोजीशन में, तो थर्ड पोजीशन में क्या आएगा कि अगर से अपना तीसरी केस, जल्दी जल्दी देखो उधर, केस 3 में कंडीशन क्या, दोनों नेगेटिव है, if x less than 0 y less than 0, दोनों अगर से नेगेटिव है तो P of xy कहां पे रहेगा, लाइज इन विच क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहां पे रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब कैसे पोजीशन है इसकी, सी नो, दिस इज द पोजीशन ऑफ आवर पॉइंट P, दिस वन, यहां पे आएगा पॉइंट P, ओरिजिन से लेके दिस इज आवर पॉइंट P, तो यहां से यहां तक के लेके ये एंगल कितना रहेगा तुम्हारा, इट इज नथिंग बट तो इसमें ये जो एंगल रहेगा ये कहां से रहेगा तुम्हारा, थीटा लाइज बिटवीन कहां से कहां तक, पाई से लेके 270, मतलब 3π/2 से लेके 180 से लेके 270 तक रहेगा। अब ये दोनों चीज में इंपॉर्टेंट क्या है वो याद रखो। पहले इसमें तो सिंपल था, एंगल तुम्हारा ऑलरेडी 0 से लेके 90 के बीच में आ जाएगा, मगर दूसरे अगर से एंगल अपना 90 टू 180 के बीच पे रहा, और इस केस में अगर से तुमको एंगल निकालेगा तो इसमें एंगल कैसे निकालेंगे अपन, इन दैट केस वी कैन फाइंड द एंगल, ये इंपॉर्टेंट है, थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहां से यहां तक पाई है, 0 से लेके पाई तक है और अपने को इतना एंगल निकालने का है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू इतने में से ये इतना एंगल क्या करेंगे, समझो ये एंगल कितना है, अल्फा, तो थीटा में से क्या करेंगे, पाई माइनस अल्फा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कितनी, पाई माइनस अल्फा करके अपन क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट निकालेंगे, अगर से पॉइंट कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो समझ के लो, समझून घ्या बघा एकदम व्यवस्थित सांगितलं काय काय लक्षात घ्यायचं। इफ आवर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो तुम्हारा एंगल कहां से कहां तक आएगा, 0 से 90 के बीच में। दूसरी बात ये कि अगर से तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है और अपने को इसका आर्गुमेंट निकालने का है, थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो यहाँ पे इसका जो एंगल निकालेंगे तो इसकी रेंज कितनी है, 0, ये कितना है π/2, ये कितना है पाई, ये कितना है 3π/2 और ये कंप्लीट 2π,
तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहने की वजह से इसका अगर से आर्गुमेंट निकालने का तो आर्गुमेंट का फॉर्मूला याद रखो, हमेशा क्या करना पड़ेगा, अगर से पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 में से उतना एंगल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू, देखो ये एंगल इतना निकालने का है और ये एंगल इसके साथ अल्फा है, तो पाई में से 180 में से क्या करेंगे, ये अल्फा एंगल क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल अपने को मिल जाएगा। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा जर केलं दिस वन, ये एंगल थीटा निकालने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे में से 180 में से ये एंगल पाई माइनस अल्फा करेंगे तो अपने को ये एंगल थीटा मिल जाएगा। अब उसी तरीके से अगर से पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका बोलो, इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो आर्गुमेंट है थीटा, ये कैसे निकलेगा, इसका एंगल ये इसके साथ कितना है, अल्फा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा कैसे निकालेंगे, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, देखो यहां से यहां तक 0, ये 90, ये पाई और ये कितना 3 पाई बाय 2, तो क्या करेंगे अपन, यहां से तो यहां तक अपने को एंगल निकालने का है थीटा, तो क्या करेंगे यहां से जाके पाई, पाई के आगे कितना एंगल, यहां से x एक्सिस से यहां पे एंगल समझो दिस वन, इट मेकिंग ए सर्टेन एंगल अल्फा, इसके साथ समझो तैयार कर दिया, तो कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा इज देयर। इट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तुमको नहीं समझेगा, जब अपन एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा इसका यूज क्या है। अभी तुम समझ के लो, क्या समझेंगे, खाली जो डब्बे में हो पहले क्वाड्रेंट में है तो एंगल कितना रहेगा, 0 से 90 के बीच में, दूसरे क्वाड्रेंट में है तो एंगल कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, एंगल मींस व्हाट, इट इज योर आर्गुमेंटल कॉम्प्लेक्स नंबर, पाई में से अल्फा क्या करेंगे, माइनस, उतना एंगल माइनस करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या करेंगे, पाई प्लस अल्फा, मतलब पाई में उतना एंगल क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड एंगल और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। ओके, नाउ द फोर्थ वन, अब फोर्थ ये बता दो आपको, केस 4 इसमें बता दो, केस 4 में क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, x पॉजिटिव और y क्या रहेगा, नेगेटिव, देन p of x y lies in which quadrant, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या आएगा वो देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा 0, ये 90, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये पूरा कंप्लीट कितना हो गया, 2 पाई इज देयर। अब अगर से अपने को एंगल निकालने का इसका, तो इसका एंगल क्या आएगा वो देखो, इन दैट वन आवर एंगल द पॉइंट P लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉइंट P कहां पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अपने को एंगल निकालने का यहां से लेके यहां तक का एंगल निकालने का है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल अगर से निकालने का तो समझो ये जो पॉइंट है ये P ऑफ xy ने ये इसके साथ कितना एंगल तैयार करा, अल्फा, अपने को निकालने का ये तो पूरा एंगल थीटा, तो यहां से यहां तक अगर से जाएंगे तो पूरा एंगल कितना है, 2 पाई, मगर ये लाइन यही ब्रेक हो गई और यह एंगल आपने को यहां तक निकालने का है, ये अल्फा की जरूरत नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, एंगल अगर से निकालने का है और पॉइंट चौथे क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई माइनस अल्फा, मतलब क्या करेंगे, ये पूरे में से 2 पाई में से अल्फा एंगल माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इतना एंगल आपने को क्या मिल जाएगा। ओके, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस कंप्लीट एंगल, यहां से यहां तक का एंगल निकालने का है, तो कितने में से ये पूरा पूरा चक्कर कितने का है, 2 पाई का, तो 2 पाई में से अल्फा माइनस कर लिए, इतना एंगल माइनस करें तो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग एरिया आपने को क्या मिल जाएगा, जितना भी एंगल निकालने का है वो मिल जाएगा। तो आप इन शॉर्ट क्या बोल रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी का पार्ट था। देखो यहां पर ये तो नहीं समझ में आया होगा तो सिर्फ 4 बात याद रखो। ओके, इन दैट वन यू रिमेंबर ओनली 4 थिंग्स, इन व्हिच फर्स्ट वन इज हियर नाउ। देखो अभी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला केस, अगर से एंगल, अगर से कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में है तो बात समझ लो, एंगल कितना आएगा तुम्हारा, एंगल की लिमिट क्या रहेगी, एंगल अपना आएगा या फिर आर्गुमेंट आएगा 0 से लेके 90 के बीच में, तब अगर से अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे है, पहले क्वाड्रेंट में है तब। दूसरी बात, अगर से दूसरे क्वाड्रेंट में है तो एंगल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, पाई में से एंगल उतना क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पाई माइनस अल्फा इज देयर, याद रखो ये 3 बातें। उसके बाद तीसरी बात, अगर से एंगल तुम्हारा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर से तीसरे क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू एंगल कितना आना चाहिए, पाई प्लस अल्फा इज देयर। और चौथी बात, अगर से थीटा इज इक्वल टू मतलब चौथे क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई माइनस अल्फा इज देयर। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में एंगल आर्गुमेंट,
दूसरे इसमें थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो 180 में से उतना एंगल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में तो थीटा इज इक्वल टू कितना, पाई प्लस अल्फा, मतलब पाई प्लस अल्फा मतलब अपन कहां के बारे में बात करें, थर्ड। ये चक्कर याद रखो, ये चक्कर देखो, ये चक्कर 0 90 180 3 पाई बाय 2। पाई माइनस अगर से बोलते हैं अपन, पाई माइनस मतलब पाई से कम, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे एंगल कितना है, पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस मींस पाई से थोड़ा कम, तब मतलब कहां पे चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा इज देयर। नाउ इफ द पॉइंट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई से थोड़ा ज्यादा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई प्लस अल्फा इज देयर। सो आर्गुमेंट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट theta is equal to pi plus alpha is there. If complex number lies in the second quadrant, it is pi minus alpha. If complex number lies in the third quadrant, आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, pi plus alpha से। और उसी तरीके से अगर सिर्फ पॉइंट अपना चौथे क्वाड्रेंट में है, तो तुमको मालूम है ये कितना रहता है, 0 और 2 पाई। तो चौथे क्वाड्रेंट में रहा तो क्या करेंगे, 2 पाई में से ये यहां से लेके यहां तक रहेगा ना, तो 2 पाई में से इतना एंगल क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई माइनस अल्फा इज देयर। समझ में आया, बात बहुत बड़ी है। यहाँ पे तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। तो इन शॉर्ट एक बार बोलो मेरे को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, 0 से 90 के बीच में जो एंगल सो आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस अल्फा, पाई से थोड़ा कम, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या, पाई से थोड़ा ज्यादा, तो पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा। फोर्थ कहां तक है इसका, 2 पाई, 2 पाई में से अल्फा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये, कि सर हम कैसे समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में, अभी समझ में आता। देखो फिर भी ये बोलो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 -4i। अब बोलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट, दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए तुमको पूछा व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अपन आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका पाई प्लस क्या करेंगे, अल्फा करेंगे। ऐसा पोजीशन है। अब समझो, मैंने तुमको पूछ लिया इसका आर्गुमेंट निकाल के बताओ, किसका, इसी का 4 -4i। तो तुम्हारा समझ में आएगा, 4 -4i मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब पॉइंट कहां पे, चौथे क्वाड्रेंट में। तो इसका आर्गुमेंट का फार्मूला, इसका आर्गुमेंट का फार्मूला क्या, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। इसका आर्गुमेंट का फार्मूला क्या है, 2 पाई प्लस अल्फा इससे। अब समझो 4 + 4i आ गया, तो आर्गुमेंट की लिमिट क्या है इसमें, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 इससे, राइट है। और लास्ट में अगर से ये -4 + 4i है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये कहां पे रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। उसका अपन एंगल आराम से निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट बिट बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2-4 बातें आपने समझ में आ गई यहाँ पे। 4 थिंग्स आर वेरी क्लियर हियर, ये अपने एम्पलीट्यूड के बारे में। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपन। एक रिमार्क ऐसा है कि तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चंस आना चाहिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जैसे कि अब मैंने बताया, देखो देखो बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसके बाद एक्चुअली नोट है, क्या नोट है, देखो क्या नोट है कि अभी तक अपन ने देखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में रहा तो थीटा कितना, राइट है। कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे क्वाड्रेंट में रहा तो थीटा कितना, राइट है। तीसरे में रहा तो तीसरा का एंगल कितना, और चौथे में रहा तो एंगल कितना, ये अभी तक देखते हैं। अगर अब नोट पे क्या है, नोट पे समझो अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट पे नहीं है, क्या बता रहे देखो, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट पे नहीं है। अब समझो क्वाड्रेंट पे नहीं है, तो समझो एक्सिस पे है, पर्टिकुलर एक्सिस पे। समझ लो क्या बता रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है अपना, ये सबको मालूम है, इसकी रेंज सबको मालूम है। यहां से स्टार्ट करेंगे अपन 0, ये आ गया π/2 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, और एक कंप्लीट राउंड करने के बाद ये हो गया 2 पाई। अब क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट में नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डज नॉट लाइज इन द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में मतलब यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्सिस पे।
अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर पर्टिकुलर एक्सिस पे रहेगा तो उस टाइम पे एंगल क्या, वेरी सिंपल बात समझो। पहली नोट ऐसी कि p of xy lies on the positive side of x axis। समझो यहाँ पे है अपना p of x, y, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस पे। तो यहाँ पे सबको मालूम है अगर से पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0। एनी पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस और पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस देन y इज इक्वल टू 0। इसके वास्ते एंगल कितना रहेगा बोलो, इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, ये पॉइंट कहां पे, यहाँ पे एंगल कितना है 0। तो सिंपली तो लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 0 इज देयर। ठीक है, अब सर इसकी एग्जांपल कैसी, फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला z इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले ये बोलो मेरे को कि ये 5 जो है, ये 5 z इज इक्वल टू 5 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? यस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है 0। तो 5 को तुम क्या लिख सकते हो 5 प्लस 0i। अब ये जो z इज इक्वल टू 5 था, 5 प्लस 0 है मतलब ओनली 5 इज देयर। तो ये 5 का मतलब रियल पार्ट पॉजिटिव है। तो रियल पार्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कहां पे रहेगा, अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। मतलब ये पॉइंट यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा। इसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा 0। बात समझी? अब समझो कभी अपना एम्पलीट्यूड, कभी अपना पॉइंट यहां पे, ये छोड़ो पहले यहां पे आ जाओ, x एक्सिस का पॉजिटिव साइड और उसका अपोजिट। समझो अपना पॉइंट है नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है। नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या कंडीशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू -5, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, इसने कितना एंगल कवर करा 0 से लेके 90, 90 से लेके ये कितना एंगल है पाई। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड z इज इक्वल टू -5 अगर से आ गया तो समझ में आना चाहिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब ये -5 कहां पे रहेगा, अलोंग द नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस। और इसके लिए जो आर्गुमेंट रहेगा, जो एम्पलीट्यूड रहेगा, वो एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, इट इज नथिंग बट पाई। तो दोस्तों पाई पे है ना एंगल कितने में, पाई पे 180 पे। ठीक है, ये हो गया। अब कभी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस पे आ गया तो मेरे को बोलो पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहेगा? एकदम सिंपल है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहेगा, z इज इक्वल टू 5i। मतलब वहां पे रियल पार्ट कितना रहेगा 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना है 5i। मतलब 5i प्लस का 5 है, समझ में आना चाहिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर इट लाइज अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। आया समझ में? तो यहाँ पे बोलो एंगल थीटा, मतलब एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, ये एंगल कितना है तुम्हारा 90। तो थीटा इज इक्वल टू कितना π/2। उसी तरीके से लास्ट बात ये है कि अगर से कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, ये कैसे समझेंगे अपन कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आ गया माइनस का 5 आए, खाली माइनस का 5 आए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्यों, तो हम इसको लिख सकते 0 - 5 आए, मतलब इसमें रियल पार्ट कितना है 0। तो वी कैन राइट हियर -5 है तो 0 - 5 आए। तो अब इसमें एंगल कितना होगा, ये हो गया टोटल एंगल, यहाँ पे होगा थीटा इज इक्वल टू 3π/2 इज देयर। तो these are the angles related to radian। तो यहाँ पे इन शॉर्ट एकदम समझ में आना चाहिए। अब जैसे मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स बोलता हूँ तुम उसके मेरे को वो बोलो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रहेगा, ठीक है, एंगल क्या रहेगा। ठीक है, मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको बोलता हूँ खाली प्रैक्टिस के लिए। देखो जैसे कि मैंने तुमको बोल दिया z is equal to -4, z is equal to -2 -3i, z is equal to -3i, z is equal to 5, z is equal to 7, z is equal to 2 plus 3i। बस इतने एग्जांपल लूंगा। अब तो मेरे को रैंडमली समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मैं इसमें ये क्वेश्चन है कि टेल मी द आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गुमेंट क्या रहेगा। तो तुम कैसा समझेंगे, z is equal to -4। सबसे पहले -4 मतलब रियल पार्ट, रियल पार्ट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द x एक्सिस। और ये माइनस में होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे आ गया, यहां पे आ गया -4, 0 नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस के।
तो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है तो इसमें एंगल कितना रहेगा थीटा इज इक्वल टू पाई, तो ये पाई पे आता। ठीक है, अब बोलो -2 -3 आए, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस मतलब कहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा करने के बाद तुमको आर्गुमेंट मिलेगा, राइट है। अब ये बोलो माइनस का 3 आए, रियल पार्ट इज 0, ओनली इमेजिनरी पार्ट इज देयर। देखो बात समझो, यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट 0 है, खाली इमेजिनरी पार्ट है, वो भी कौन सा है, माइनस वाला नेगेटिव पार्ट है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, और यहाँ पे एंगल कितना रहता, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 स्क्वायर। अब z इज इक्वल टू 7, खाली 7 है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, 7 प्लस 0 है तो 7 है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो कहां पर रहेगा, रियल पार्ट कहां पर रहता है, x एक्सिस पे, तो कहां पर रहेगा, पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, तो एंगल कितना रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से 2 प्लस 3 आए, दोनों पॉजिटिव है, 2 प्लस 3 आए दोनों पॉजिटिव, मतलब यहां पे, तो इसके रेंज कितनी है, पहले क्वाड्रेंट की रेंज कितनी है, थीटा की रेंज कितनी रहेगी, 0 से लेके 90 इतनी रहेगी, नेक्स्ट वन। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखने के बाद समझ में आना चाहिए कि इसका एंगल क्या रहेगा, साइन देखने के बाद ऐसा समझ में, तो ये है नोट इस पे की सबसे इंपॉर्टेंट नोट। अब हम जाएंगे आगे, ओके। सो लास्ट थ्योरी बिट, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एकदम लास्ट थ्योरी बिट रह गया, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो लास्ट थ्योरी बिट है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट बिट इज पोलर फॉर्म ऑफ ए complex number. So clear now what is meant by polar form of a complex number. So question इसमें ऐसा आता, express the following complex number as a polar number. polar में एक्सप्रेस करो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है व्हाट इज मीन बाय पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म किसको बोलेंगे, एकदम सिंपल है, सबसे पहले आ जाओ ये फिगर पे, ठीक है, ये अपना x एक्सिस छोड़ दीजिए अपना क्या से, ठीक है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश y डैश की जरूरत नहीं। कोई पॉइंट P है, if there is a point P, it lies here P of x, y, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, ये क्या है इसका मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मॉड z को अपन कैसे डिनोट करेंगे, r से सपोज। अब ये पॉइंट P ने कुछ तो भी एंगल तैयार करा, ये एंगल का नाम क्या है, थीटा। थीटा इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या करेंगे, ये देखो यहां से ये पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस मॉड्यूलस ऑफ z मतलब r, और इसका एंगल थीटा मींस एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसका नाम दिया PM। कल ये बिट बताया था मैंने, O से लेके M तक रियल पार्ट x और PM इज पैरेलल टू y, तो इसका डिस्टेंस कितना y। तो सबसे पहले ये बोलो मेरे को, ये सबका मालूम है, इसमें sin थीटा इज इक्वल टू कितना, sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या आना चाहिए y बाय मॉड z, मतलब इसका y बाय r। तो मॉड z मतलब क्या लिया अपन ने r, तो इसमें से तुम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले अपन cos निकालेंगे, x की निकालेंगे फिर y की, आगे पीछे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले cos थीटा निकालता हूं मैं, cos थीटा की वैल्यू बोलो adjacent upon hypotenuse, so it is nothing but x upon mod z, मतलब इस क्या x upon r, so what is the value of x is equal to r cos theta। okay, similarly tell me the value of sin theta की वैल्यू क्या, opposite upon hypotenuse y by mod z, y by mod z मतलब कितना r, so what is the value of y is equal to r sin theta। now tell me what is complex number, complex number कौन से फॉर्म है, ये complex number z is equal to x plus iy, it is our complex number। तो ये complex number में क्या करो, x के प्लेस पे x की वैल्यू, x कितना निकाले तुमने r cos theta into i, y के प्लेस पे y की वैल्यू r sin theta
दोनों में r क्या है कॉमन, तो z इज इक्वल टू r कॉमन and in bracket cos theta plus I times sin theta, and this form is said to be the polar form of complex number. ये फॉर्म को क्या बोलेंगे अपन, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब पोलर फॉर्म अगर से निकालने का है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो सबसे पहले उसका डिस्टेंस ओरिजिन से मालूम होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस मालूम होने के बाद उसका एंगल एम्पलीट्यूड अपने को निकालना पड़ेगा। ये दोनों चीजें निकालने का और ये फॉर्मूला में रख देने का। जैसे कि सपोज डिस्टेंस आया √2, तो r के प्लेस पे कितना आएगा √2, एंड cos थीटा एंगल आया π/4, तो ये cos π/4 प्लस i टाइम्स sin π/4। दोनों का एंगल सेम रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, है ना। थीटा दोनों का एक ही है, दोघांचा सर थीटा एकच आहे, एंगल एकच येणार, एक तर π/4 आला तर हे पण π/4 आणि हा सुद्धा π/4 is there. So this form is said to be the polar form of a complex number. Z is equal to r into cos theta plus i times sin theta. ओके, पोलर फॉर्म के बाद और एक फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस पे डिपेंड है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे निकालेंगे, देखो ये समझ में आएगा एकदम सिंपल। ये फिगर से हमने cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r, इसकी x की वैल्यू निकाले r cos थीटा। वही फिगर से sin थीटा इज इक्वल टू y बाय r, y की कीमत निकाले r sin थीटा। दोनों वैल्यूज अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर को रख दी, x के जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू, दोनों में r कॉमन, इसलिए r कॉमन निकला, इसलिए cos थीटा प्लस r sin थीटा। I hope you got that one. You proceed to the further explanation. Last bit कर। उसके बाद अपन प्रॉब्लम्स करेंगे। जिस किसी को थ्योरी नहीं समझी होंगी तो यू डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन। प्रॉब्लम करते समय और थ्योरी तुमको समझ में आएगी, और जब भी मैं थ्योरी बताऊंगा कि हमने क्या क्या यूज करे थे, इसलिए पहले थ्योरी अच्छे से देखो। नहीं समझ आऊंगा तो डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन, अपन प्रॉब्लम के टाइम पे और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो पहले समझ के लो। तो ये last form is the exponential form of that one. Exponential form. So in exponential form, as far as exponential form is concerned, so what are the exponential form? See now. Exponential form में सबसे important है ये form। ये actually क्या हो गया, De Moivre's theorem cancel हो गया न्यू सिलेबस अपने 11th टेस्ट में से, त्यामुळे तुम्हाला इथे थोडा त्रास होणार आहे। तर याच्यामध्ये हे असतो की e raised to i theta जो असतो, e raised to i theta is nothing but cos theta plus i times sin theta. It is a formula for e raised to i theta that is stored in De Moivre's theorem. e raised to i theta is nothing but cos theta plus i times sin theta. ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें तुम क्या करो, पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म तुम्हाला माहिती है, व्हाट इज पोलर फॉर्म? Z is equal to r into cos theta plus i times sin theta। तो ये पोलर फॉर्म में replace cos theta plus i sin theta by e raised to i theta, and this form is said to be the exponential form. This form is said to be the exponential form of complex number। दोनों में डिफरेंस समझना है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर से निकालने का है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका पोलर फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो पोलर फॉर्म कितना है, z is equal to r into cos theta plus i times sin theta। It is our polar form। तो ये पोलर फॉर्म में सिंपली ये cos theta plus i sin theta के प्लेस पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, e raised to i theta। It is said to be the exponential form of complex number। So z is equal to r as it is and replace cos theta plus i sin theta by e raised to i theta, and this form is said to be the exponential form of complex number। तो ये पूरी थ्योरी इतना अगर से अपने को मालूम है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन सॉल्व एग्जांपल्स वेरी इजीली। फिर वो एग्जांपल तुम्हारे बोर्ड के रहने दो, एनसीईआरटी के रहने दो, या फिर तुम्हारे जेईई के कौन से भी रहने दो, इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर से ये थ्योरी समझी होगी। तो नहीं भी समझी होगी तो प्रॉब्लम के टाइम पे तुमको समझेगा, ठीक है। देखो हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, साइड में थोड़ा लिख देंगे अपने जो जो थ्योरी लिखने वाला है, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में। तो मैंने तुमको पूछा सबसे पहले मॉड्यूलस क्या है, तो मॉड्यूलस क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या रहता, इट इज नथिंग बट मॉड z। क्या है फॉर्मूला उसका, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने तुमको पूछा आर्गुमेंट क्या रहता,
आर्गुमेंट को क्या बोलते हैं अपन, एम्पलीट्यूड। तो आर्गुमेंट को पापा याद है सबको, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a। अपने दिल पे कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस iy लिए तो y बाय x आएगा, और a प्लस i लिए तो b बाय a आएगा। दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए कोई एक रखो, दिस वन। थर्ड वन, फिर अपन इसके डिफरेंट क्वाड्रेंट्स देखिए, सबको मालूम है